Hi, how are you, children? Now, welcome to my channel, Fun with Chemistry. And today we will start first chapter of second term of 10th class, that is carbon anides compound. Children, this time we can say this era is known as carbon era. Why this era is known as carbon era? Because we use lots of things in a daily life that is made by carbon. Okay, so this chapter name is also carbon and its compound. Okay, in an atmosphere, carbon percentage is there 0.02% present, but its oxide, that is a carbon dioxide, its percentage is 0.03%. You can understand by this percentage. Okay, so let's me start in a detail of this chapter. Each and everything we have to clear. Okay, isn't it? Now, so children, we use carbon in a different ways. First point, our body is also made by the carbohydrate, protein, vitamins, DNA, RNA. There are so many things are present. In all these things, carbon is present. Without carbon, carbohydrate is not possible. Protein, in a protein also carbon present. Raphases, vitamins, hormones, all these things, they carry carbon, then they prepare. Okay, so all these points. Second point, if you will see that in a medicine, if any medicine you will take, in that carbon is present. Without carbon, not possible. Paracetamol, brufen, many are there. In all that, carbon is present. So see that one by one, each and everything. Fuel, petrol, diesel, okay, all they are also having a carbon. These are the carbon compound. Okay, then third point is their clothes. Cotton is a natural, but polyester, terylene, terracotta, all these materials are made by carbon element. Okay, children? Next point, detergent, soap. In that also carbon present. Without carbon, not possible we can prepare detergent as well as soap. So no cleaning will be there. हमें गंदे कपड़े ही पहनने पड़ेंगे. So in that carbon is present. Next number, paper. Paper we made by the bamboo plant. In a plant body, carbon is present. Then that wood prepare. Then we prepare paper. Okay. Plastic. Plastic, polythene also. There are different kinds of plastic. प्लास्टिक की टंकियाँ भी हमारी बनती हैं, जूते चप्पल के सोल भी बनते हैं, वायर की, इलेक्ट्रिक वायर की कवरिंग भी बनती है. All these made by the plastic. In a plastic, carbon is present. Next is their rubber. नेचुरल रबर वी गेन फ्रॉम प्लांट, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होती. ये सारी चीज़ें डिटेल आप 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे. उसमें हम जो है मेन कंपोनेंट होता है हमारा कार्बन है उसमें, उस मटेरियल में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर लेदर. इन लेदर कंपोजिशन कार्बन इज प्रेजेंट. अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है ये, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही पूरी कार्बन कंपोनेंट से बनी हुई है. Next point is their medicine. Just now I told that about the medicine. Explosive material, TNT, RDX, उसमें भी कार्बन होता है.
पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। अब बच्चों देखिए, हम एक एक चीज कार्बन से रिलेटेड देखते हैं। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर देखिए कितना होता है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल है। चलिए, है ना, नॉन मेटल है, कंफर्म, नॉन मेटल तो है हमारा ये। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4। ठीक है ना। अब बच्चों देखो, यहां इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि ये डोनेट क्यों नहीं करता या गेन क्यों नहीं करता, दोनों को हम देखते हैं। ठीक, ठीक है। न्यूक्लियस वाले पार्ट में प्रोटॉन 6 है। मान लीजिए यदि कार्बन डोनेट कर रहा है, कैटायन बनाता है, तो यहां जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसे एनर्जी चाहिए, तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी टू मेक अ कैटायन। कैटायंस फॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं? 4। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। चलिए, ये काम खत्म हो गया, कैटायन नहीं बना पाएगा। नो। चलिए अब देखते हैं कि ये एनायन बना सकता है क्या। एनायन प्रिपेयर करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एनायन के लिए कितने चाहिए उसे? 4। ओके, यहां प्रोटॉन बैठा हुआ है 6, उसके पास कितने हो गए? 4 और आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। 10। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों, एक की भी शेयरिंग हो सकती है, 2 की भी शेयरिंग हो सकती है, 3 की भी शेयरिंग हो सकती है, लेकिन 4 की नहीं होगी। रूल होता है हमारे लिए, लिमिटेशन होती हैं कि रूल के अकॉर्डिंग हमें शेयरिंग करानी है। ऐसे कंपाउंड जो आपस में शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, नोबल गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, that is known as a covalent bond, and that compound is known as a covalent compound. Okay, तो एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वेरी सिंपल, 1। अब यहां पर एक साइंटिस्ट थे, लुइस कॉसल नाम के साइंटिस्ट थे, या आप लोग लुइस याद रखिएगा। उनके बेस पे हम लुइस डॉट डायग्राम बनाते हैं। ओके, और इसमें H2 में शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होना है। देखिए किस तरीके से है। यहां हमने हाइड्रोजन लिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया।
डिफरेंट डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये किस वाले हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन और हीलियम हमारे डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। हीलियम में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन को शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन जो है करना होता है। अब बेचारे दोनों हाइड्रोजन ही गरीब हैं और दोनों की कंडीशन सही नहीं है और उन्हें डुप्लेट फॉलो करना है। तो एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इससे कहता है भाई तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तुमको ज़रूरत है तो मैं भी अपना दे दूंगा और दोनों जो है हम स्टेबल हो जाएंगे, दोनों के पास में डुप्लेट हो जाएगा। हर एलिमेंट, हर एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे हम लोगों को चाहिए एग्ज़ाम में पास होने के लिए बाउंड्री होती है, कितने नंबर होने चाहिए, वहाँ पासिंग मार्क्स होता है। इसी तरीके से इनके लिए 2 रूल होते हैं, एक डुप्लेट का होता है जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है वहाँ सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, वो सिंगल बॉन्ड को इसलिए किस तरीके से लिखा जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हुई है। नेक्स्ट नंबर दैट इज अमोनिया गैस। ओके, NH3। ओके, जैसा आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,5। हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 ही होता है, उसका तो बेचारे का 1 होता है। ठीक है ना। अगर आप KLM में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्या मतलब हुआ, पहले वाले शेल में हमने K में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2, दूसरे वाले में कितने रख दिए, 5, यहाँ तो बेचारा 1 ही है। ठीक, अब डायग्राम देखो हमें बनाना है। हमने नाइट्रोजन यहाँ बना लिया, यहाँ हमने हाइड्रोजन इंडिकेट कर दिए। एक हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आपको 5 इंडिकेट करना है। मैंने यहाँ 1-1 क्यों इंडिकेट किया है, क्योंकि इनको 1 की शेयरिंग करनी है। हाइड्रोजन को डुप्लेट करना है तो 1 चाहिए उसको। यहाँ आपने 1 की शेयरिंग दिखा दी, इसको भी ये तीनों हाइड्रोजन दे देते हैं। तीनों हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को दे दिया, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिन्होंने आपस में शेयरिंग की है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों आप देखिए यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी से शेयरिंग नहीं कर रहा है, वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर बोलते हैं। पेयर 2 का होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग नहीं करते हैं उनको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बोलेंगे। क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया, गिव एन एग्जाम्पल इन विच 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट। याद रखिए अमोनिया गैस है। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल बच्चों हमारा है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। ओके,
कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन का आपको मालूम है कितना होता है, केवल K में है, ठीक है। कार्बन यहाँ हो गया, 4 हाइड्रोजन हमने ले लिए। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है। आओ भाई 1-1 की शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन ने, चारों हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन का नंबर आया, उसे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन के खुद के 4 हैं, अब हाइड्रोजन ने अपने अपने दे दिए। लेकिन बच्चों एक एक की शेयरिंग हो रही है, ये नहीं बोलिएगा कि 4 की शेयरिंग हो रही है। ओके, यहाँ देखिए हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया है। ये सिंगल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को इंडिकेट कर रही है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि 4 की शेयरिंग हो रही है, 3 से ज़्यादा के कोई रूल नहीं है।